singer, all messy and pretty, just making believe. Good evening to everyone. I heartily welcome you all of you to the Android Study Jam. So let the people join for a minute. Then after that, we will start our journey in Android Study Jams. Hope my voice is audible to all of you and my screen is visible to you. If yes, then write something in the chat box like good evening, Shubham, or anything, whatever you want to write in the chat box. So people are joining. We will wait for a minute more. Let's wait for 17 to. So now I think all people are joined us. So let me just share the screen again. And once again, good evening to everyone. Please feel free to share your all the doubts in the chat section. Welcome to the Android Study Jam. So what the Android Study Jam is. So before starting the session, people are not aware of this term. So first let's understand what the Android Study Jam. So Android Hello, Simran. Study Jam is, Sorry, yes, sorry for recording start. yes, recording is already started from my side. Okay, done. Yeah, okay. So coming back to the slide, what the Android Study Jam is. So it is nothing but a group of people. एक छोटा सा ग्रुप होगा जो जो सभी के कॉलेजेस में ये कंडक्ट करता है बाय GDSC गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब. एक छोटा सा ग्रुप होगा जिसमें सब प्रोग्रामिंग करते हैं साथ में और कुछ डेवलप करते हैं. एंड एज द नेम सजेस्ट एंड्रॉइड स्टडी जेम्स. सो एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन हम बनाने वाले हैं. सो ज्वाइन अवर ग्रुप, your favorite app. But before moving ahead, let me ask you one question, that which Android application you are using on a daily basis. Please write in the chat box so that we can build engagement with each and everyone. The question is, which Android application is your favorite and you use almost every day and you can't even live without that Android application? Yes, WhatsApp, Instagram, YouTube. Yeah, so the most used app is almost 3 application. First, YouTube, Instagram, and WhatsApp, which everyone uses on daily basis, right? So moving ahead, let's discuss more about what the Android Study Jam is. So how can you start your journey with us? First, you have to create your developer profile, which should be public, not private. So keep this point in your mind. So let me show you how you can create your developer's account. So as you click on the link, this type of dashboard will be shown. As I had already created my developers account, it will be redirected to my developers public profile. लेकिन अगर आपने नया प्रोफाइल क्रिएट होगा तो यहाँ पर एक छोटा सा ऑप्शन होगा क्रिएट या साइन इन का. तो आपको अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर देना है और सेम अकाउंट थ्रू आउट द कोर्स आपको यूज करना होगा. फिर जैसे जैसे आप कोर्सेज में आगे बढ़ोगे आप कुछ बैजेस अर्न करोगे विच वी विल डिस्कस इन मोर डिटेल. सो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है, इस लिंक पर जाना है और यहाँ से एक गूगल डेवलपर का पब्लिक प्रोफाइल क्रिएट करना है. उस प्रोफाइल में हम आपके कुछ बैजेस 16 बैजेस जो है टोटल वो हम ट्रैक करेंगे.
that you can showcase on social media like LinkedIn, Instagram, or wherever you want to share it. And add the hashtag Android Study Gems, Developer Students Club, और अगर आप ट्विटर पर शेयर कर रहे हो then make sure to tag Google Developers in, that stands for India. Okay, moving ahead, this is my developers account and how to proceed in this journey. So obviously you need a software named as Android Studio. यहाँ पर link given है, यहाँ पर जाना है, and I'm assuming that you people can download this software on your own. अगर नहीं आता तो YouTube को यूज करें, गूगल को यूज करें, कुछ डॉक्यूमेंटेशन आप रीड कर सकते हो. और जैसे ही मैंने यहाँ पर विजिट किया मेरा एक बैच यहाँ पर आ गया. ठीक है, यू अर्न द एंड्रॉइड स्टूडियो यूजर बैच. और अगर आप व्यू प्रोफाइल पर करोगे तो आपका बैच यहाँ पर शो हो जाएगा. तो जैसे आप एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करोगे आपको एक और बैच मिलेगा जो आप यहाँ से देख सकते हो. सो एज यू कैन सी हियर इज माय एंड्रॉइड स्टूडियो यूजर which I earned on 12th March 2021. So download the Android Studio. First, you had created your open account, public account for Google Developer Profile from which we will be tracking you. And the second thing, you need Android Studio to start the journey with us. Course link. So which are the course we will be covering in this journey? So this is the course. In this entire course, you will be find 6 units. And each unit, there will be some pathways we will discuss in more. So there is 4 pathways in unit 1. Let's explore in more detail about this. And there is one more thing called as Kotlin Playground. So now what is Kotlin Playground? So this is nothing but an IDE, you can say, where you can run your code and which works as an online compiler for you. ठीक है, सो Kotlin Playground क्या है? एक IDE की तरह होगा जहाँ पर अपने कोर्स को रन कर सकते हो. और आपको चाहिए होगा एक एंड्रॉइड स्टूडियो जहाँ पर आप अपनी एंड्रॉइड ऐप्स बनाओगे. लेकिन ऐप्स बनाने के पहले हम कुछ टेस्टिंग करेंगे, कोड लैब में कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे. सो आपको एक प्लेग्राउंड की ज़रूरत होगी, एंड्रॉइड स्टूडियो की ज़रूरत होगी, और ये रहा इसका कोर्स लिंक. सो मूविंग अहेड, इक्विपमेंट नीडेड फॉर ईच स्टूडेंट. ऑब्वियसली कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए होगा, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 GB के अराउंड होगा. और उसके बाद भी ग्रेडल फाइल्स के अंदर कुछ आपकी फाइल्स डाउनलोड होगी. और उसके बाद एक USB केबल अपने पास रखिएगा क्योंकि एक इम्यूलेटर नेम की चीज़ होती है जो हम देखेंगे. लेकिन अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप अच्छा नहीं है, 16 GB 32 GB की रैम नहीं है, तो हो सकता है कि आपका लैपटॉप फटने के चांसेस है. लैपटॉप मतलब बहुत ही हीट अप होगा आपका लैपटॉप. सो मेक श्योर आप अपने कोई भी एप्लीकेशन रन करते हो, स्टार्टिंग फेज के अंदर आपका उतना हीट नहीं करेगा, लेकिन जैसे जैसे नेविगेशन किया उससे आगे की तरफ बढ़ोगे तो इम्यूलेटर उतना रिस्पॉन्स नहीं देगा आपको. सो हम सारे अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन मोबाइल में रन करेंगे थ्रू द केबल. सो व्हाट यू विल बी लर्निंग जर्नी विल लुक लाइक एज डिस्कस्ड बिफोर. 6 यूनिट्स हो गए, सभी यूनिट्स के अंदर 16 पाथवेज हो गए और सभी पाथवेज के अंदर 16 क्विजेज हो गए. इतने करने के बाद आपको सभी के अंदर एक एक बैच रन होगा, दैट इज टोटल 16 बैचेज आपको मिलेंगे. और इतना करने के बाद आपको गूगल की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा विच शोज दैट यू हैड कंप्लीटेड दिस जर्नी विद अस. और हमारी ओर से हम कुछ और भी प्लानिंग्स कर रहे हैं, कुछ स्मॉल इवेंट्स के जैसे कुछ एक्स्ट्रा लेआउट्स बनाए गए अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्स, और कुछ स्टिकर्स हो गए जो हम दे रहे होंगे आपको. सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड्रॉइड बेसिक्स. क्या आपको कुछ प्री रिक्वेसाइट्स है इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए? तो नहीं, आपको सिर्फ कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, बेसिक है जो कि आई होप एज्यूमिंग दैट एवरीवन नो हाउ टू यूज लैपटॉप और कंप्यूटर. और कुछ मैथ स्किल्स आने चाहिए जैसे कि प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, इस तरह का बेसिक मैथ स्किल आना चाहिए. और करिकुलम यूज्ड इज ऑलरेडी सीन. सो ओवरव्यू ऑफ व्हाट वी विल लर्न. सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कॉटलिन का, जहाँ पर हम सीखेंगे कुछ वेरिएबल्स क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, इफ एल्स कंडीशन को किस तरह यूज करना है, व्हेन स्टेटमेंट क्या होता है. तो सारे बेसिक कोडिंग जो होगी वो हम फर्स्ट यूनिट में देखेंगे. उसके बाद हम हमारी एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन सेकेंड से स्टार्ट करेंगे बनाना, और उसके बाद एक बेसिक लेआउट्स बनाना स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एक बर्थडे कार्ड बनाएंगे. और उसके बाद हम थोड़े और इंटरेक्टिव एप्स बनाएंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट का यूज करके. और उसका यूज करके हम एक डाइस रोलर ऐप बनाएंगे. अगर आपने लूडो खेला होगा तो उसमें एक डाइस होता है जो रोल करता है और ये रैंडम वैल्यूज जनरेट करके देगा.
फिर उसके बाद हम यूजर से इनपुट किस तरह लेते हैं और एक टिप कैलकुलेटर ऐप बनाएंगे। फिर उसके बाद आपने इंस्टाग्राम देखा होगा कि जैसे जैसे स्क्रॉल करते हो तो स्क्रॉलिंग एक्टिविटी किस तरह बनाते हो वो हम सीखेंगे। उसके बाद नेविगेशन किस तरह होगा, जैसे आपने व्हाट्सएप के अंदर देखा होगा कि आप लेफ्ट साइड स्वाइप करते हो तो कुछ चीज़ें आती है। फिर और भी कई एप्लीकेशन अमेजन में आपने देखा होगा कि स्वाइप करते हो तो दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। तो ये सब हम नेविगेट बिटवीन स्क्रीन्स के मॉड्यूल में देखेंगे। और उसके बाद धीरे धीरे एडवांस चीज़ों की तरफ हम मूव हो गए 9 to 12। फिर उसके बाद थोड़ी और एडवांस, और ये सब चीज़ें अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो समझ नहीं आएगी। सो फिलहाल 7 to 5 तक समझिए, इससे डिटेल में हम आगे और देखने वाले हैं। सो टेंटेटिव टाइम टेबल 29 to 30 नवंबर के बीच में एक सेशन होना चाहिए था जो हम चल रहा है हमारा। और उसके बाद हम सेशन 2 कंडक्ट करेंगे 3 दिसंबर के अराउंड, जिसमें हम पाथवे 5-6 कवर करेंगे। और उसके बाद 15 दिसंबर को हम सेशन 3, और उसके बाद सेशन 4 होगा 20 दिसंबर के अराउंड, और 26 दिसंबर को सेशन 5। एंड मिनिमम वी विल ट्राई टू टेक योर सेशन 3 इन दिस जर्नी। और अगर टाइम और बचा तो हम एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बनाएंगे, और वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमारे फीचर हो सकते हैं गूगल के ब्लॉग पोस्ट पर। सो ओके, मूविंग नेक्स्ट, व्हाई शुड यू एनरोल इन एंड्रॉयड स्टडी जैम्स। सो एज डिस्कस्ड बिफोर, कुल स्वैग्स मिलेंगे, स्वैग्स तो नहीं कह सकता बट सर्टिफिकेट मिलेगा, कुछ स्टिकर्स मिलेंगे और कुछ एडिशनल प्रैक्टिस करेंगे लेआउट्स की। और you can showcase wait a minute. Hello. So we can showcase these certificates on social media like LinkedIn, Instagram, and you can also write this in your resume like we have built one Android application which is featured on blog post of Google, right? So why Kotlin as a developer's language? Okay, so why Kotlin as a developer language? तो कॉटलिन लैंग्वेज जो है वो जेट ब्रेन से बनाई है, और जिन्हें नहीं पता कि जेट ब्रेन्स क्या है, सो जेट ब्रेन्स एक कंपनी की तरफ समझ सकते हो जितने कुछ आईडीईज बनाए हैं। और सेकेंड थिंग, गूगल मेड कॉटलिन एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ डेवलपिंग एप्स। जैसे कि हिंदू रिलीजन में गणेश जी की जिस तरह पूजा होती है, सिमिलरली अगर कोई भी एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाता है तो गूगल बोलता है कि पहले आप कॉटलिन को यूज करें, उसके बाद दूसरी लैंग्वेजेस को प्रेफरेंस दे। You can also use Java for building Android applications. So moving to the next slide, interesting facts about Kotlin. अगर आप Java से आ रहे हो यहाँ पर, then you may understand this points. और अगर नहीं, if this is Kotlin is your first language, then अगर मैं ये रीड भी करूंगा तभी आपको समझ नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल नल सेफ्टी, पॉइंटर एक्सेप्शन, अगर आप जावा से नहीं हो तो ये चीज़ समझाऊंगा तो अभी आपको समझ नहीं आएगा। 30% लेस कोड इज कम्पेयर टू जावा, मतलब कि जितना जावा में कोड लिखोगे उससे 30% कम कोड लिखना पड़ेगा कॉटलिन में। यहाँ पर मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है एज कम्पेयर टू जावा। और जितने भी प्ले स्टोर पर 1000 एप्लीकेशन है उसमें 70% जो टॉप एप्लीकेशन है उन सभी लैंग्वेज यूज किया गया है। सो एनी क्वेश्चंस from your side? Hello, hope I'm audible to all of you. Yes. Yes. Any question that you want to ask to me? यहाँ पर कोई भी फैकल्टी नहीं है, okay? So you can free to share your thoughts about Kotlin, Android, whatever you want to share. I think there is a question for you in chat section. Yes, दिख तो नहीं रहा, अच्छा मैंने scroll ही नहीं किया। Yes, you can continue your journey with us. अगर badges already लिए हुए then you don't need to earn again. एक सर्कुलेट फॉर्म होगा, उसमें जस्ट आपको अपना जो पब्लिक प्रोफाइल है उसकी लिंक ऐड करनी होगी। Okay, thank you. सो अगर कोई और भी है जिसने पहले से कंप्लीट कर रखा है देन दे कैन आल्सो ज्वाइन विद अस। So do you want break or want me to continue this
session to the unit 1 of pathway 1. यहाँ से हम कुछ Kotlin के बेसिक्स कवर करेंगे, जैसे कि वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करना, फंक्शन किस तरह यूज होते हैं, इफ एल्स और व्हेन स्टेटमेंट को किस तरह यूज करना, थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेगी यहाँ से. If you want me to continue, then write yes, or you can unmute yourself, or you can also say that yes, continue from this slide. वरना हम नेक्स्ट सेशन में भी कर सकते हैं ये. Okay, so it will take me around 10 to 15 minutes only. So take a break of 2 to 3 minutes. फिर यहाँ से, और अगर कोई लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हुआ, they wants to join from the laptop, then join from the laptop and open this Kotlin playground, जहाँ पर साथ में कोड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं और आउटपुट देख सकते हैं. ठीक है, so this will increase our engagement with all of us. So take a break of 2 to 3 minutes. We will be come back in 2 to 3 minutes again. I hope you all are enjoying this session. हेलो. प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट होगा ये सेशन के बाद, मतलब 15 टू 20 मिनट्स बाद हम एक लिंक शेयर करेंगे, वहाँ पे अपनी सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी.
Hello. Hope you all are ready with your IDE and laptop turned on. If yes, then write yes in the chat section. Okay, many people have their IDs. जितने ने भी yes कहा है उन सभी को अपनी स्क्रीन शेयर करनी होगी, ठीक है? I can't see link in laptop chat box. So कुछ कोड करते हो. It's time for coding, practical implementation. ठीक है, वरना मजा नहीं आएगा. So जैसे ही कोई भी लैंग्वेज हम लर्न करते हैं, मतलब सीखते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हम करते हैं that is hello world. Hello world तो लिखा हुआ ही है. Let's run and this is printed hello world. So किसी और ने भी अगर रन किया हो hello world, then they can share their screen. इसके बाद हम कुछ वेरिएबल्स देखेंगे कि वेरिएबल्स को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, फंक्शन किस तरह बनते हैं. Hello. Hope you all are with me. Yes. So अगर किसी ने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रन किया हो then they can show us. कोई नहीं करना चाहता. So let's move towards the variables. वेरिएबल्स किस तरह से बनते हैं, लेकिन उससे भी पहले हम एक फंक्शन बनाते हैं. सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर मेन फंक्शन होता है, फिर चाहे वो सी लैंग्वेज हो, C++ हो, जावा हो. तो कॉटलिन में भी सिमिलरली एक मेन फंक्शन करते हैं जहाँ से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है. सो फिलहाल मैं इसे रिमूव करता हूँ और एक अपना नया फंक्शन बनाऊंगा. ठीक है, फंक्शन कुछ इस तरह बनाते हैं. फंक्शन के लिए फन लिखूंगा और एक रोबोट का फंक्शन बनाते हैं. सभी ने रोबोट मूवी देखी होगी, ठीक है? सो इंट्रो रोबो. फिर आपको इस तरह से कुछ लिखना है और ये इस फंक्शन की बॉडी होगी. सो अभी अगर मैं इसे रन करूंगा तो कुछ नहीं होगा और कुछ होना भी नहीं चाहिए क्योंकि कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ एक फंक्शन बनाया है. और इंट्रो रोबो फंक्शन के अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिखूंगा प्रिंट एलन. ठीक है, जो अभी हमने हेलो वर्ल्ड से प्रिंट करवाया था मैसेज, वो मैंने यहाँ पर लिखा. तो अब एक मैंने रोबोट बना लिया. ठीक है, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया और ये फंक्शन क्या बोलता है, हेलो वर्ल्ड. ठीक है, यहाँ पर एक न्यू लाइन जो हम देखेंगे कि क्या होता है. एंड हेलो वर्ल्ड बोलेगा रोबो और फिर क्या बोलता है, आई एम चिट्टी. सी कैपिटल कर दे, चिट्टी. और न्यू लाइन के अंदर चिट्टी द रोबो. ठीक है, अब एग्जीक्यूट करते. अब भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैंने फंक्शन तो बनाया लेकिन इस फंक्शन को मैंने कॉल नहीं किया. सो जब भी आप फंक्शन बनाते हो तो उसे कॉल करना पड़ता है. सो कॉल कुछ इस तरह करते हैं कि मैंने फंक्शन बनाया, अब मैं इस फंक्शन को बुला रहा हूँ कि आ जाओ भाई एग्जीक्यूट करो इस फंक्शन को. तो इंट्रो रोबो रन करते हैं. सो यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन हो गया है. हेलो वर्ल्ड, आई एम चिट्टी, चिट्टी द रोबो. एक और लाइन मिसिंग लग रही है, दैट इज स्पीड कर देते हैं. न्यू लाइन में एक और आएगा, स्पीड 2 टेराबाइट्स. ठीक है, सो हेलो वर्ल्ड, आई एम चिट्टी, चिट्टी द रोबो. सो हमने यहाँ पर क्या किया, एक फंक्शन बनाया. फंक्शन कुछ इस तरह से बनाया कि फन इसे कीवर्ड बोलते, और फिर फंक्शन का नेम, फिर पैरेंथेसिस, और फिर करली ब्रेसेस के अंदर हमारी बॉडी आती है फंक्शन की. हमें जो भी फंक्शन के अंदर करवाना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक प्रिंट एलन स्टेटमेंट से एक मैसेज प्रिंट करवाया. आप यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें करवा सकते हो जो हम देखेंगे अभी आगे. सो मैंने एक फंक्शन बनाया इंट्रो रोबो, जो एक रोबोट का फंक्शन है और रोबोट अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा है. तो यहाँ से फिर मैंने इस तरह कुछ फंक्शन को कॉल करवाया. सो होप दिस इज क्लियर टू यू. अगर किसी और ने मेरे साथ कोड लिखा हो देन दे कैन ऑल्सो शो इट टू मी.
Is there anyone who is also coding with me? हेलो, कोई और भी तो कुछ बोलो, अकेले करने का कोई मतलब नहीं है ना। यस शुभम। यस, आपने अपना आईडी खोल कर रखा है या सिर्फ वैसे ही सुन रहे हो सभी की तरह? यस आई एम प्रैक्टिसिंग विथ यू। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स मोर कंसेप्ट्स। ये हमने देखा फंक्शन किस तरह से बनाए थे। अब इस फंक्शन में थोड़ा और मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ यस, आई थॉट यू वुड आस्क मी टू शेयर माय स्क्रीन। yes, please share your screen if you have done something not, but same as what I done. Yes, Suketu Pepperotar. Great. Yes, demo. Hello. ठीक है, तो हमारा जो भी फंक्शन है, यस, थैंक यू सो मच फॉर बिल्डिंग एंगेजमेंट विद ऑल ऑफ अस। सो हमारा फंक्शन था, रोबो अपना इंट्रोडक्शन दे रहा था, उस फंक्शन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। फिलहाल हमारा फंक्शन कुछ कर नहीं रहा, मतलब कि एक रोबोट की फंक्शनैलिटी तो बना ली, लेकिन उस रोबोट का कुछ नेम नहीं दिया। फॉर एग्जांपल, एक रोबोट 1 है जिसका नेम चिट्टी है, उसके अंदर तो ये सही चलेगा, लेकिन दूसरा एक रोबोट है जिसका नेम कुछ और है, तो उसके लिए भी ये चिट्टी प्रिंट ही करेगा, जबकि मुझे ये नहीं करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक नेम बनाते हैं रोबोट का। नेम कुछ इस तरह से बनाएंगे, एक कीवर्ड है वैल रोबो नेम, रोबोट का नेम बना लिया, ठीक है। नेम देता हूं चिट्टी, चिट्टी, ठीक है। अब रन करता हूं प्रोग्राम को। कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ है लेकिन नहीं हुआ है। एक्चुअली ये चिट्टी जो था वो पहले वाला ही है, ये वाला चिट्टी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं मंकी लिखता हूँ, ठीक है। मंकी लिखकर एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर मंकी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है, ठीक है। सो लिखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर मुझे अपना स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग जिसे कहते हैं किस तरह से होगा, इससे पहले हमारे फंक्शन को ये जो बनाया हमने नेम, वो यहाँ पर पास करना होगा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो हम एक पास करते हैं रोबो नेम, मतलब ये जो इसे वेरिएबल कहते हैं। जिन्हें प्रोग्रामिंग का नॉलेज नहीं है, ये हमने क्या किया, एक कीवर्ड है वैल। एक्चुअली 2 कीवर्ड्स होते हैं, लेकिन फॉर नाउ जस्ट फोकस ऑन वैल। एक कीवर्ड बनाया, वैल बनाया नहीं, एक्चुअली ये पहले प्री डिफाइंड होता है, और फिर यहाँ पर वेरिएबल का नेम आता है। सो नेम मैंने लिखा रोबो नेम, मतलब कि रोबोट का नेम, और यहाँ पर वैल्यू असाइन कर दी, ये मेरे रोबोट का नेम है। अब मैंने यहाँ पर पास किया इंट्रो रोबो के अंदर, और यहाँ पर पास किया तो यहाँ पर एक्सेप्ट भी करना चाहिए, तो रोबो लिखूंगा और स्ट्रिंग। यहाँ पर एक्चुअली उल्टा होता है, सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि स्ट्रिंग पहले होता है, मतलब डेटा टाइप इसे बोलते हैं, ये डेटा टाइप पहले होता है और उसके बाद वेरिएबल का नेम होता है, ठीक है। अगर मुझे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखना हो तो मैं लिखूंगा स्ट्रिंग और रोबो नेम, जबकि यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ठीक है। सो कमिंग बैक टू कॉटलिन, यहाँ पर एक पास किया मैंने वेरिएबल, वो वेरिएबल यहाँ पर एक्सेप्ट होगा रोबो वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पर चिट्टी की जगह आई एम प्रिंट करते हैं। प्रिंट कुछ इस तरह करते हैं रोबो, ठीक है। सो एज यू कैन सी यहाँ पर आई एम मंकी कर कर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर हमने अभी चेंज नहीं किया है। सो लेट्स चेंज दिस ऑल्सो, और वेरिएबल का नेम है हमारा रोबो, ठीक है। सो यहाँ पर भी आ गया हेलो वर्ल्ड, आई एम मंकी, मंकी द रोबो, स्पीड 2 टेराबाइट्स, ठीक है। सो यहाँ पर हमने एक और चीज सीखी, ये वेरिएबल्स क्या होता है उसको डिफाइन किस तरह करते हैं।
सो हमने देखा कि वैल कीवर्ड लिखना पड़ता है, उसके बाद वेरिएबल का नेम और फिर इक्वल साइन, और उसके बाद जो भी वैल्यू असाइन कर रही हूँ। इसको लिखने का एक और तरीका है, क्या है? वैल रोबो नेम। यहाँ पर मुझे डेटा टाइप डिफाइन करना हो तो मैं कर सकता हूँ, बस कॉटलिन, बट कॉटलिन इज वेरी स्मार्ट लैंग्वेज, इट कैन प्रिडिक्ट डेटा टाइप जैसे कि इंट, इंटीजर्स, फिर फ्लोट, डबल, ये सारे डेटा टाइप्स के अंदर आता है। स्ट्रिंग तो अपने आप ही समझ लेता है कि ये स्ट्रिंग है और इसे स्ट्रिंग में स्टोर करना है। बट एक्सप्लिसिटली आई कैन ऑल्सो डिफाइन समथिंग लाइक दिस, कि एक वेरिएबल बनाना है स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। अब अगर मैं इसे रन करूं देन इट शुड वर्क। सो एज यू कैन सी, हेलो वर्ल्ड, आई एम मंकी, मंकी द रोबोट, स्पीड 2 टेराबाइट्स, ठीक है। सो दो तरीके हैं इसे लिखने के, बट हम हमारे कोड को शॉर्ट रखने की कोशिश करते हैं। सो एवरीवन यूजिंग दिस वे। एक और तरीका होता है, फॉर एग्जाम्पल, आई होप वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर होगा, थोड़े और डिस्कस करेंगे वेरिएबल का। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। यस, दिस इज मोर लाइक जावा और लाइक सी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है ना, सो वेरिएबल में थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। सो वेरिएबल में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मंकी है, रोबोट का नेम। अब मैं रोबोट का नेम चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रोबो नेम मैं रखना चाहता हूँ चंदूलाल, ठीक है। अब रन करता हूँ तो यहाँ पर एक एरर आया, वेल कैन नॉट बी रीअसाइंड। इसका मतलब क्या है बाद में देखते हैं। इससे पहले एक और तरीका होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का, दैट इज वेर, ठीक है। अब मैं कोड को रन करता हूँ देन इट शुड वर्क, हेलो वर्ल्ड, आई एम मंकी, मंकी द रोबो, स्पीड 2 टेराबाइट्स, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब अगर मैं ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करूँ फिर क्या होगा? क्या होगा? राइट इन द चैट बॉक्स इफ एनीवन नोज, क्या आउटपुट आ सकता है? थोड़ा सा गैस तुक्का वगैरह लगा सकते हो। जग रही हो कुछ? हेलो, सेम एज बिफोर, लेट्स सी। यस, सेम एज बिफोर, हेलो वर्ल्ड। अरे सेम एज बिफोर कहाँ से? आई जस्ट शो द आउटपुट। लेट्स सी कि यहाँ पर हुआ क्या। पहले हमने वैल यूज किया था और ये कमेंटेड था इतना कोड हमारा, ठीक है। हेलो वर्ल्ड, आई एम मंकी, मंकी द रोबोट, स्पीड 2 टेराबाइट्स। अब मेरा एम क्या है कि ए सेम रोबोट है और सेम रोबोट का नेम मुझे अपडेट करना है। फॉर एग्जांपल मंकी नेम का जो रोबोट है उसका नेम मुझे चंदूलाल करना है। तो यहाँ पर एरर आ जाता है कि आप रीअसाइन नहीं कर सकते, ये बोल रहा था मुझे। वो क्यों आ रहा था देखते हैं। जबकि अगर मैं वैर करके लिखता हूँ तो इसका नेम चंदूलाल हो रहा था। क्यों हो रहा था? इसलिए क्योंकि वैल जो होता है इससे अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर करें तो वो एज अ कांस्टेंट रीड होता है, इसलिए कांस्टेंट की वैल्यूज आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर ये आपको शो करता है कि वैल्यू कैन नॉट बी रीअसाइंड, ठीक है। वंस अगेन, वैल में क्या होता है, जब आप वैल से कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, एक्चुअली डिक्लेयर करने के दो तरीके होते हैं, एक तो वैल या तो वैर। अगर VAR से अगर आप करते हो वेरिएबल को डिक्लेयर तो उसकी वैल्यू आप रीअसाइन कर सकते हो, जबकि वैल करते हो तो एज अ कांस्टेंट आपका वेरिएबल डिक्लेयर होगा। सो होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। और वैल में आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। और अगर मैं इसको वैर डिक्लेयर करूं तो यहाँ से चेंज हो जाएगी, हेलो वर्ल्ड, आई एम चंदूलाल, चंदूलाल द रोबो, स्पीड 2 टेराबाइट्स, ठीक है। सो एनी क्वेश्चन सो फार? नो, बोथ आर वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं, या तो आप उसे वैर कर सकते हो या तो वैल कर सकते हो। अगर आप वैल करते हो तो जो भी आप उसमें डालोगे वो कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, जबकि वैर में आप चेंज कर सकते हो। दैट इज द समरी ऑफ व्हाट वैल एंड वैर इज। So till this point everything is clear to all of you, difference between val and where? यहाँ तक अगर किसी ने कुछ एग्जीक्यूट किया हो then they can show it to me. किसी ने कुछ नहीं किया फिर तो इस तरह ऊपर से जाएगा सब।
अनूप ने कुछ एग्जीक्यूट किया है? यस, बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया। ओहो क्या बात है, रोबो नेम रोबो नेम। चंदूलाल में स्पेस था मेरे में। पहले कॉटलिन किया था। ग्रेट। थोड़ा और आगे देखते हैं, और कौन है ये? Just a question. If I declare a int value, then can I add or subtract it? Yes, integer में same तरह से होगा. Question once again, let me read. The question is अगर int val करता हूँ तो add या subtract होगा कि नहीं? होना चाहिए, assign नहीं हो सकता. That's the point. मतलब change नहीं हो सकती उसकी value. For example, देखते हैं उसके बाद यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं. ग्रेट क्वेश्चन। फंक्शन मिल गया, ठीक है। एक वैल num1 करते हैं इज इक्वल्स टू 1 वैल num2। ठीक है, सो यू कैन ऐड, दो वैल्यू ऐड हो सकती है, बट अगर मैं कुछ इस तरह करना चाहूँ, वैल num1, अगर num1 को मैं चेंज करके 5 कर दूँ तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। Hello, Shubham. सॉरी, I एक think your मिनट, screen is not. स्क्रीन तो शेयर ही, ओह माय गॉड, Okay, okay. नहीं स्क्रीन तो शेयर ही है। Perfect. रिज्यूम Done. प्रेजेंटिंग, कुछ दिखाई नहीं था क्या? वापस देखते हैं। सो ये वाला देखा, एक मैंने num1 बनाया वेल टाइप का, 1 वैल्यू असाइन की, नंबर 2 बनाया, फॉर नाउ लेट्स कमेंट, वेल 2 किया, और फिर एक रिजल्ट में स्टोर किया num1 प्लस num2। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जीक्यूट होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट बी री असाइंड, ठीक है। सो अब num1 की मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर 5 कर रहा हूँ, तो ये अलाउड नहीं है यहाँ पर, वैल कैन नॉट बी री असाइंड। सो होप योर डाउट इज क्लियर। एनी क्वेश्चन सो फार? ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क था पीछे, या आंसर था? यस, वी कैन कंसिडर एज अ फाइनल। एक्चुअली जावा में कीवर्ड होता है फाइनल करके, जो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करती है वेरिएबल को, या फंक्शन के आगे भी फाइनल लिखते हैं, जो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होता है। सो दिस इज वेरी सिमिलर, और आई कैन से द सेम एज फाइनल इन जावा। ओवरराइड इज समथिंग डिफरेंट, जो फंक्शंस में आता है, but I understand what you trying to say. We cannot override, well yes you are right, लेकिन आपने जो ओवरराइड टर्म यूज किया वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो फंक्शन में यूज होता है। सो आगे हम देखेंगे वो क्या होता है ओवरराइड और ओवरलोडिंग, ठीक है। यस, द करेक्ट वर्ड इज ओवररिटन। सो आई थिंक मैनी पीपल आर एंगेज्ड विद अस। थोड़ा सा और आगे जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। कहाँ गया हमारा, होप माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सो हमने अभी तक क्या करा था, चंदूलाल का रोबोट का नेम बनाया था, एक वेरिएबल बनाया, फिर उस रोबोट का हमने नेम अपडेट कर दिया, मंकी था पहले, मंकी रखा था, उसके बाद चंदूलाल कर दिया, और उसके बाद एक फंक्शन बनाया, और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, रोबोट हेलो वर्ल्ड आई एम चंदूलाल, चंदूलाल द रोबो, स्पीड 2 टेराबाइट्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर हमने देखा कि वेरिएबल्स किस तरह डिक्लेयर करते हैं, वेल और वेर में डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से आपको डिक्लेयर करना चाहिए और क्या अलाउड नहीं है,
ये भी देखा। अब थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है इफ एल्स, देखते हैं किस तरह से। वेट अ मिनट। सो इफ एल्स स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या है इफ एल्स। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा। आई नो, आई होप कि अब आपको वेरिएबल क्रिएट करना हो गया। तो एक मैंने वेर लिखा और यहाँ पर एक स्पीड लिखते हैं, ठीक है। स्पीड और स्पीड रखते हैं 20, ठीक है। और मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर कि अगर इफ, ये लिखने का तरीका ध्यान से देखना, पैरेंथेसिस स्पीड इज ग्रेटर और इक्वल टू 20, मतलब कि स्पीड अगर 20 या 20 से ग्रेटर है तो ये वाला कोड चलाना, वरना ये वाला कोड चलाना, वरना एल्स, ठीक है। और अगर एक स्टेटमेंट है आपके पास तो आप ये कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाओगे, देन ऑल्सो इट्स फाइन, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ कि अगर स्पीड 20 या 20 से अगर बड़ी है तो एक प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो? यही वाला प्रिंट करते थोड़ा सा, यहाँ से ये हटाऊंगा और लेट्स पेस्ट इट हियर, स्पीड 20 टेराबाइट्स, ठीक है। इसे थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बट फॉर नाउ जस्ट सी व्हाट हैपेंस। प्रिंट एलन क्या करते हैं यहाँ पर, हाउ स्कोर रोबो, because my speed is very slow, ठीक है। अरे यहाँ पर भी होगा एक quotation mark, parenthesis close, so everything is fine. Okay, let's see what happens. यहाँ पर थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करते हैं। स्पीड I can run fast and save people. I am defense robo, ठीक है। ये insert I think on. Let's run now. This makes some sense to understand what is happening behind the scene. So hello world, I am Chandulal the robo, और यहाँ पर मैंने एक लॉजिक लिखा, सिंपल सा लॉजिक, कि अगर स्पीड रोबोट की 20 या 20 से ग्रेटर है तो ये वाली लाइन प्रिंट करो, और अगर 20 या 20 से ग्रेटर नहीं है, दैट इज 20 से छोटी है, 19 से नीचे या 19, तो ये वाली प्रिंट करो। और यहाँ पर मैंने हार्ड कोडेड वैल्यू की है 20, तो ये वाली लाइन प्रिंट होनी चाहिए। स्पीड 2 टेराबाइट्स, आई कैन रन फास्ट एंड सेव पीपल, आई एम डिफेंस रोबो। अब अगर मैं इसकी स्पीड कम करता हूँ, ये स्पीड को आप फंक्शन में भी पास कर सकते हो, बट फॉर सिंपलिसिटी जस्ट यूज दिस। सो हमारा एल्स ब्लॉक रन करना चाहिए। सो हाउ स्कोर रोबो, बिकॉज माई स्पीड इज वेरी स्लो। सो एल्स स्टेटमेंट पर हमारा एग्जीक्यूट हुआ और इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। सो होप दिस इफ एल्स स्टेटमेंट इज क्लियर। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अगर इतना क्लियर हो तो मैं वो इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं कि क्या है। Is here anyone who don't know any programming language like C or C++, Java or any language? क्या कोई ऐसा है यहाँ पर जिसे कोई भी लैंग्वेज ना की हो अभी तक? सो तो मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो व्हाट द if else स्टेटमेंट ये था। कौन सी लैंग्वेज है? यू कैन रेज योर हैंड जो कम्प्लीटली न्यू भी है, ठीक है। अक्षय, ये कौन सी लैंग्वेज है? सॉरी योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। यस, मैनी न्यूबीज आर हियर। सो थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं क्या है if else। ये लैंग्वेज कौन सी है? ये लैंग्वेज कॉटलिन है। कब ज्वाइन हुए आप? हम तो फर्स्ट ईयर में ही है अभी। आज ही। फर्स्ट ईयर तो ठीक है, लेकिन ये सेशन ज्वाइन कब किया? आज ही। तो कब से ये? ये कॉटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा होता है, पाइथन होता है, उसी तरह अभी तो कॉटलिन सी है। भी नहीं आती पूरी।
कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस नहीं चाहिए, बट अगर आता हो देन इट वुड बी मोर बेटर। कोई नहीं, हम थोड़ा और डिटेल देखते हैं कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है। बस 3 ही जन थे फर्स्ट ईयर से। Sir, I have a one question. यस Sir, सर क्यों you बोल रहे हैं यार? अरे मुझे पता नहीं दोस्त है, एक्चुअली दोस्त। हाँ ये लैंग्वेज का हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं सर? अरे तुम लोगों ने कब ज्वाइन किया? पूरा बेस ही उड़ गया सबके दिमाग से। मेरा अभी पहला ही है, बेस मतलब बना पहली ही बार ही नहीं, ज्वाइन किया फिर मैंने। कहाँ से उड़ेगा? ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेशन है एंड्रॉयड का। एंड्रॉयड जो मोबाइल होता है एंड्रॉयड, उसके अंदर Yes, एप्स sir. होती है। वो एप्स हम बनाएंगे इस कोर्स के अंदर, ठीक है। सो इस कोर्स में एंड्रॉयड एप्स बनाने के लिए 2 लैंग्वेज यूज होती है, या तो जावा यूज करो या तो कॉटलिन यूज करो। और भी यूज कर सकते हो, बट फॉर मोर सिंपलिसिटी एंड इजी वी यूज जावा और कॉटलिन। ये 2 लैंग्वेज से करेंगे तो हम इजीली एंड्रॉयड एप्स बना सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, ठीक है। सो हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, एक कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम एक एंड्रॉयड एप्स बनाएंगे, लेकिन एंड्रॉयड ऐप के अंदर बैकएंड में कुछ कोड होगा, तो वो कोड हमें नहीं आता। वो कोड 2 तरह से होता है, या तो जावा से कोड कर सकते हैं हम, या तो कॉटलिन से कर सकते हैं। लेकिन गूगल ये बोलता है कि अगर आप कोई भी एंड्रॉयड एप्स बनाते हो तो पहला प्रेफरेंस कॉटलिन को दीजिए, ठीक है। सो हम कॉटलिन लैंग्वेज सीख रहे हैं, उसके बाद हम एक सेशन के बाद देखेंगे कि किस तरह कॉटलिन यूज होती है और उस कॉटलिन लैंग्वेज को यूज करके एंड्रॉयड एप्स किस तरह बना सकते हैं। सो माय पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ एनी क्वेश्चन टू Yes, यू? yes. आप सब Sir, कौन से ईयर के हो? हम तो फिलहाल 3rd ईयर में है। ओके। sir, I have one question. अरे सर मत बोलो, बेइज्जती फील होती Sorry. है। हाँ तो हाँ, क्या क्वेश्चन है? sir, but question Kotlin के related नहीं, Python के related है। पाइथन तो नहीं आती मुझे, फिर भी पूछ लो, तुक्का लग जाए। हाँ सर, सर तो हम पाइथन में आपने कोड मतलब कोड जनरेट कर दिया, मतलब बना दिया फाइल। सर उसको हम लोग फोन के अंदर कैसे रन करेंगे, मींस विदाउट एनी वर्चुअल प्लेटफॉर्म? पाइथन के अंदर कोड लिखा? हाँ सर, अब उस कोड को हमें फोन के अंदर रन करना है, एंड्रॉइड फोन में। कुछ लाइब्रेरीज होती होगी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि C++ से एक GUI बनता है, दैट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और जावा से भी बनता है और बनाया हुआ भी है, तो वो तो डेस्कटॉप में रन होता है। और पाइथन के लिए भी एक लाइब्रेरी होती है, आई थिंक टिंक्टर या ऐसा कुछ करके। अगर यहाँ पर कोई अवेलेबल हो जिससे नॉलेज हो, देन दे कैन शेयर द पॉइंट ऑफ व्यू। उसका यूज करके हम मोबाइल के लिए बना सकते हैं, नहीं तो सिंपली जस्ट गूगल इट, हाउ टू रन पाइथन कोड इन गूगल का एंड्रॉइड। डगडगो का रिजल्ट बहुत बेकार होता है। यू कैन यूज टर्मक्स ऐप। टर्मक्स के थ्रू आपको रन करना होगा कोड। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए यूट्यूब पर देख लेना, यहाँ पर बना हुआ तो इतना मस्त 20 मिनट्स का वीडियो है, हाउ टू रन पाइथन ऑन एंड्रॉइड फोन्स। इससे अच्छा क्या चाहिए? शेयर कर दो लेकिन लिंक। हाँ क्या उसमें? गाइस आज का ये लेकिन वीडियो सर देखने के बाद आप लोग अपने उसमें भी एंड्रॉइड कोई फोन के एक वर्चुअल अंदर मिनट, ये पाइथन चालू हो प्रोग्रामिंग गया कर है। पाओगे। आप में से कई लोग हाँ तो क्या हुआ उसमें? सर उसमें भी मतलब कोई वर्चुअल प्लेटफॉर्म चाहिए जिसके थ्रू हम लोग रन कर सकते हैं, मतलब विदाउट वर्चुअल प्लेटफॉर्म, बीच में कोई भी मीडियम नहीं वर्चुअल होना चाहिए। प्लेटफॉर्म कहाँ है? ये तो हैंड टू हैंड डिवाइस होगा ना। बट सर उसके लिए भी हमें उसके अंदर रन करना है ना, टर्मिक्स के अंदर, डायरेक्ट एंड्रॉइड में रन करने के लिए। डायरेक्ट में एंड्रॉइड तो फिर एंड्रॉइड स्टूडियो जैसा कुछ होना चाहिए, वो तो पता नहीं क्या होता है। गूगल करो, और तो क्या बोलूँ। किसी और को बताओ तो बता दो। ओके, थैंक यू सर। इट्स माय Hello, प्लेजर, Shubham. लेकिन आंसर तो मिला नहीं। हाँ I think his question is how to run Python program in Android. मतलब Android अच्छा, phone. रन करना है कोड को। Am I right? Right? लैपटॉप नहीं है तो कोड को एग्जीक्यूट करना है। हाँ सर, कोड एग्जीक्यूट हाँ करना है मुझे एंड्रॉइड के अच्छा, अंदर। इतना सिंपल सिंपल था। पहले बता दिया होता। एंड्रॉइड एप्लीकेशन ये तो सही, इतनी अच्छी अच्छी मैंने जो पर्सनली भी यूज की है।
जस्ट प्ले स्टोर पर जाओ और लिखो पाइथन कंपाइलर, इंटरप्रेटर, सॉरी नॉट कंपाइलर, यस आ तो गया। पाइथन का कोड रन करना है मोबाइल में, इतने सारे लेकिन है। सर हाँ उसमें क्या, सर मैंने हम पहले से डिस्कस कर रहे हैं ना कि सर बीच में कोई दूसरा ऐप नहीं आना चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है यार तुम्हारा। ये कहन ने भी एक लिंक शेयर किया है, वही था जो भी देख रहा था। इसमें क्या प्रॉब्लम है पाइड्रॉइड 3 में? एक काम करते हैं, इसको एंड में थोड़ा डिस्कस करते हैं, 2 कंसेप्ट और दिखाने हैं, वो देख लेते हैं पहले, उसके बाद शांति से देखते हैं कि आपकी क्वेरी क्या है, एनालाइज करते हैं थोड़ा। ओके थैंक यू सर। ठीक है, थोड़ा आगे देखते हैं, कहाँ पर थे हम? रोबोट बनाया था, नाम रखा था इसका इफ एल्स, देख रहे थे हम। ठीक है, सो एक इंटरेस्टिंग चीज देखने जा रहे थे हम, क्या था? जो सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है कि एक इफ कीवर्ड होता है, 2 पैरेंथेसिस होती है, और इसके अंदर एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ट्रू फॉल्स में इवेल्यूएट होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर कोई कंडीशन है, ये ट्रू इवेल्यूएट होती है तो ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और ये चीज़ अगर फॉल्स होती है तो ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट होगी। ये लॉजिक होता है सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। ठीक है, लेकिन कॉटलिन क्या बोलता है कि ये जो आप इफ एल्स लिखा है, इसे आप एज ए एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हो। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ वेर, और रिस्पॉन्स करके स्टोर करता हूँ, ठीक है, और इतना हटाता हूँ फॉर नाउ, प्रिंट एलन हटा दिया। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा किसी का अगर दिमाग चल रहा हो देन दे कैन शेयर कि यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है। एनीवन वांट टू से समथिंग कि यहाँ पर क्या होने वाला है या क्या हो सकता है? कोई बेसिक आइडिया अगर आ रहा हो किसी के माइंड में किस तरह होना चाहिए? गलत हुआ तो कोई बात नहीं, हम देखेंगे रन करके कि क्या होता है और क्या होना चाहिए था। Hello. हाँ यस, I think there will be a variable created response, and the value will be the result of the if-else statement. यस Whichever मतलब is हाँ correct. यस सेम थिंग। यहाँ पर क्या होगा कि इफ एल्स के अंदर जो भी होगा एग्जीक्यूट होगा, जो भी ब्लॉक वो रिटर्न होगा। एक मिनट पहले सही लिखा था, और रिटर्न होकर रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल है उसमें जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो रहा है, और रिस्पॉन्स नाम का डेटा टाइप क्या होगा? एनीवन वांट टू से कि यहाँ पर इफ एल्स में तो कोई कैरेक्टर, स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग होगी। कैरेक्टर किस तरह से होगा? स्ट्रिंग होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक मैंने स्ट्रिंग लिखा है, और इफ में से अगर ये वाला चला तो ये स्ट्रिंग रिस्पॉन्स में आ जाएगा, और इफ एल्स के अंदर ये वाला चला तो ये एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग यहाँ पर आ जाएगा। सेम थिंग वी कैन ऑल्सो डू विथ अदर डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर्स, फ्लोट, डबल्स, एनी डेटा टाइप, और वी कैन डू विथ ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो आई थिंक। सो इतना हुआ, और अब क्या करना चाहिए मुझे कि चेक करना है कि रिस्पॉन्स में क्या वैल्यू है। प्रिंट रिस्पॉन्स। यस प्रिंट करता हूँ। प्रिंट से एक और चीज याद आई जो हम देखेंगे अभी, एक मिनट। रिस्पॉन्स वेरिएबल है, ठीक है, रिस्पॉन्स, ठीक है। सो सेम चीज हुई, बट डिफरेंस क्या था कि इफ एल्स यहाँ पर रिटर्न कर रहा है मेरी वैल्यू, कि अगर ये वाला ट्रू हुआ तो ये वैल्यू रिटर्न होगी और इस वेरिएबल में जाएगी, और ये हुआ तो ये वाली वैल्यू रिटर्न होगी और इस वेरिएबल में जाएगा। इतना चीज एडिशनल हो रहा है जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नहीं होता। ठीक है, और रिस्पॉन्स को यहाँ पर प्रिंट कराया, सो ये वाली लाइन प्रिंट हुई जो यही होना चाहिए, एज 10 इज लेस देन 20। ठीक है, सो प्रिंट एलन में बता रहा था कि यहाँ पर 2 चीज होती है, एक तो प्रिंट और प्रिंट एलन, दोनों में डिफरेंस क्या है?
कोई बताना चाहेगा प्रिंट और प्रिंट एलन में डिफरेंस क्या है? प्रिंट करता हूं कोई मैसेज, हेलो वर्ल्ड, सेम लाइन में प्रिंट होगा। हाँ Print यस, और एक और next मैंने line में। मैसेज प्रिंट किया और हेलो वर्ल्ड, ठीक है, रन किया। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रिंट मैंने लिखा तो सेम लाइन के उसके पीछे अपेंड हो गया, मतलब अपेंड तो नहीं कहूंगा बट उसके नेक्स्ट के बाद ही यहाँ पर आ गया। और अगर प्रिंट एल एन क्या बोलते हैं, एल एन मतलब कि लाइन, नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड। तो ये एक डिफरेंस था प्रिंट और प्रिंट एल एन में। एग्जीक्यूट नहीं हो गया। कुछ लॉजिक में गड़बड़े होना तो चाहिए। पहले का कोड भी चला गया। यस, यहाँ पर एक्चुअली इस तरह से अगर कुछ करे तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट लाइन के चलेगा, फिर यहाँ से जो भी कैरेक्टर होगा वो नेक्स्ट लाइन में आएगा। सो यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड किया तो हेलो वर्ल्ड यहाँ की जगह यहाँ पर नीचे आ गया। सो यहाँ पर प्रिंट एलन बोल रहा है कि यहाँ से जो भी हो उसे नीचे प्रिंट करना। सो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड नीचे की तरफ आ गया। सो हमारा वो पहले वाला कोड तो चला गया, चंदूलाल वाला। सो आज के लिए इतना इनफ है, या एक और चीज देख लेनी है, दैट इज व्हेन स्टेटमेंट, सॉरी व्हेन कीवर्ड नॉट अ स्टेटमेंट। yes, a print method prints the string but does not move cursor to the new line। हाँ, कर्सर को न्यू लाइन के में शिफ्ट कर देता है प्रिंट एलन। वही डिफरेंस था प्रिंट और प्रिंट एलन के अंदर। प्रिंट एलन बोलता है कि जो भी चीज होगी वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगी। सो व्हेन कीवर्ड देखना है या नेक्स्ट सेशन में देखेंगे उसे? आर यू स्टिल कनेक्टेड विद मी? क्योंकि हमारा प्रीवियस कोड तो जा चुका है, पूरा कोड करना पड़ेगा। सो आई थिंक व्हेन से हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, फिर थोड़ी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और एंड्रॉयड पर काम करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले लेट्स सम अप दिस सेशन। यहाँ पर से हम सो थैंक यू सो मच टू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस एंड्रॉयड स्टडी जेम्स विद अस। सो हमने ये देख लिया था कि प्री रिक्वेस्ट साइट्स, इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, ये सब होना चाहिए, हेडफोन, ओके, ऑब्जेक्टिव्स देख लिया, ये हमारा बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम एक एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना होगा अपने लैपटॉप के अंदर। उसका लिंक यहाँ पर है, ये पीपीटी शेयर कर दूंगा मैं। यहाँ से आपको एक साइट ओपन होगी, ये वाली, ये रही। यहाँ से आपको एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना है, और अगर इंस्टॉल करना नहीं आता तो यूट्यूब यूज़ करे, गूगल यूज़ करे, कुछ भी यूज़ कर, लेकिन ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए आपके डिवाइस के अंदर, और एक केबल होना चाहिए और मोबाइल होना चाहिए। और खुद से थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहो तो आप ये वाली वेबसाइट पर जा सकते हो, ये लिंक शेयर कर दूंगा, एंड्रॉयड बेसिक्स कॉटलिन यूनिट 1। इसके अंदर आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर जो मैंने अभी बताया कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इतना सीखने के बाद आप यहाँ से एक अपना बैज अर्न कर सकते हो, और उससे आप एक बर्थडे कार्ड डिज़ाइन कर सकते हो। मैंने एक डिज़ाइन किया था, लेट मी शो यू द बर्थडे कार्ड। बर्थडे कार्ड सिंपल होगा, मतलब अभी ऐप तो नहीं होगी, बट फंक्शन का यूज करके इस तरह से कुछ आपका बनेगा। सो बेसिकली ये चीज़ आप सीखोगे कि जितनी एज होगी उतनी बड़ी केक होगी। और एक और कंडीशन है यहाँ पर कि कैंडल्स भी उतनी होनी चाहिए, लेकिन कैंडल्स यहाँ से नीचे नहीं जानी चाहिए। इस तरह से कुछ कोड होगा इसका, आप अपनी ओर से देख लेना अंदर
कि किस तरह से ये, और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी गिवन है हर एक चीज़ का। और यहाँ से जैसे आप क्विज दोगे आपको एक बैच रन हो जाएगा। और उसके बाद अगर एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करते टाइम अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ पर होगा हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्यूमेंटेशन इज द बेस्ट थिंग फ्रॉम विच यू कैन सी व्हाट द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। ठीक है, अगर इसे फॉलो करेंगे देन आई होप कि कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी ट्यूटोरियल्स और ब्लॉग्स होते हैं वो डॉक्यूमेंटेशन से ही बनता है। ठीक है, सो यहाँ से हेल्प ले सकते हो आप कि डाउनलोड और इंस्टॉल किस तरह करना है एंड्रॉइड स्टूडियो। और आप ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हो कि अपनी फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप किस तरह बनती है। आपको सिंपली इम्यूलेटर में रन करना है, और अगर नहीं आता देन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि एंड्रॉइड स्टूडियो को किस तरह से यूज़ करना है। सो दिस इज ऑप्शनल थिंग्स विच यू कैन डू। कमिंग बैक टू अवर स्लाइड्स, इतना देख लिया था। क्विजेज होगी इस तरह से, और क्विजेज की मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, जितनी बार आप देना चाहो उतनी बार दे सकते हो। द पॉइंट इज यू शुड लर्न समथिंग न्यू। अगर गलत होता है होने दो, कंसेप्ट क्लियर करो, वापस टेस्ट दो एंड मिनिमम स्कोर्स को अचीव करो, देन यू विल अर्न बैजेस। बैजेस कुछ इस तरह से होगा, डेवलप ए प्रोफाइल, पाथवे 1 बता दिया आपको, पाथवे 2 नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, एंड इम्यूलेटर भी हम उसी में आएगा पाथवे 2 के अंदर। और यहाँ से हम कुछ व्यूज की तरफ मूव करेंगे, मतलब रियल एंड्रॉइड एप्लीकेशन हम बनाएंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। सो दैट्स फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। होप यू एंजॉयड दिस सेशन. If yes, then use this tag Android Study Jam and share this message on all your on all your social media profile. So thank you so much. Have a great day. एंड्रॉइड स्टूडियो सॉफ्टवेयर है जिसमें एंड्रॉइड ऐप्स बनेंगे, और हमारा मेन गोल क्या है कि ये कोर्स जैसे कंप्लीट होगा एक प्रोजेक्ट हम बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको चीज़ें आनी चाहिए, और चीज़ें आने के लिए आपको एंड्रॉइड स्टूडियो कैसे यूज़ करना है, कोड कैसे करना है, ये आना चाहिए। ठीक है, सो एंड्रॉइड स्टूडियो तो चाहिए होगा, कोड ऑनलाइन रन होगा लेकिन ऐप्स जो आप बनाओगे वो ऑनलाइन रन नहीं होगा। सो एंड्रॉइड स्टूडियो चाहिए होगा आप सभी को। एनी अदर क्वेश्चंस? If not, then you are free to leave this session. Bye to all of you. नेक्स्ट सेशन के अंदर एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करके लाना, तो कुछ रियल इम्प्लीमेंटेशन जैसा लगेगा। थैंक यू सर जी, दिव्य राज, थैंक्स टू यू। वरना इसी तरह होता रहेगा, मैं अकेला बोलूँगा, आप सुनोगे, बाय बोलोगे, थैंक यू बोलोगे, चले जाओ। हाँ, और एक फॉर्म का बताना था, कोई नहीं, वो तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन ही हो गए सभी लोग, तो फॉर्म एक सर्कुलेट हो जाएगा। अगर इतना करने के बाद अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो ऑफिशियली, जिसके बाद आपको कुछ स्वैग स्टिकर्स और कुछ और एडवांस चीज़ें सीखने मिलेगी, देन यू मस्ट फिल दिस फॉर्म सो दैट वी कैन ट्रैक योर प्रोग्रेस थ्रू आउट दिस कोर्स। ठीक है, उसका लिंक शेयर करता हूँ शॉर्ट करके थोड़ा। ये व्हाट्सएप पर भी सर्कुलेट हो जाए, सो यू डोंट वरी अबाउट दिस लिंक ऑफ गूगल फॉर्म। So I'm ending this meeting here if you don't have any questions. Once again, thank you so much all of you. Have a great day. Bye to all. Leave call.